Hello everyone. Today we are going to start reading and reflecting on textbooks. Uh, the syllabus for Punjabi University Patiala is Section A Reading Resources NPE 1986 NCF 2005. Reflection on Core Element NPE 1986 NCF 2005. Aims of Education, Pedagogy and Evaluation. Section B we have reading of textbooks class 8th, 9th, Science, Social Science, Mathematics and Languages. Reflection on core elements in the above stated school textbooks with respect to gender, environment and health. In my series of videos, I will be explaining all the topics related to syllabus one by one. So now in this video, I am starting with the topic reading of policy document, National Policy of Education NPE 1986. इंडिया में पहला एनपी जो आया था एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो पहला आया था 1968 में आया था. फिर 1979 में जो हम न्यू रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो केवल पेपर्स तक सीमित थी. 1986 की हमको इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी. इन 1986 एनपीई पॉलिसी इट हैज़ 12 पार्ट्स और इसके 12 पार्ट्स कुछ इस तरीके से गिवन है. लाइक फर्स्ट पार्ट इज ऑफ इंट्रोडक्टरी, सेकंड पार्ट सेज द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, थर्ड पार्ट सेज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, फोर्थ सेज एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, फिफ्थ पार्ट सेज reorganization of education at different stages, sixth says technical and management education, seventh making the system work, eighth reorienting the content and process of education, ninth the teacher and teacher education, 10th management of education, 11th resource and review, 12th the future. Next topic we have main features of NPE 1986. Main features ਦੇ ਵਿੱਚ the first feature is national system of education, second is vocationalization of education. Vocationalization means giving the practical knowledge to the student rather than giving only theoretical knowledge. Third is education for equality, means education should be given to women, education should be given to SC ST caste, backward caste. Fourth is elementary education and operation blackboard. Fifth is Navodaya Vidyalayas or pace setting schools. Sixth, raising the status of teachers. The teacher's status can be raised by giving them practical knowledge. Seventh is promotion of adult education. Eighth is new education institutions, that is by establishing DITES. DITES refers to District Institutes of Education and Training. Ninth is role of voluntary agencies. 10th is accountability in education. In NPE 1986, it is an extensive document that covers all aspects of education from elementary to university level and even adult education. It is a guide for the development of education in the country. The principles included in NPE 1968 are also included in the new policy, which is known as NPE 1986 with some modifications. Why there is need for education policy? It means कि एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है. एक्चुअली इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पे एवरीथिंग इज सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द एजुकेशन सिस्टम शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड. सो देयर इज़ नीड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. इन ऑर्डर टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन सभी के लिए अचीव करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट मैनी इंसेंटिव्स एंड अटेम्प्ट्स have been made by the government. The well-being of the Indian nation and Indian people or society at the national and local level can be done by the education. जो इंडिया के लोकल पीपल हैं, सोसाइटी हैं और इंडिया की जो हमारी इंडियन कंट्री है, इंडिया की जो कंट्री है, इसका वेलबींग, इसका उद्धार, इसका अच्छा तभी हो सकता है अगर हम नेशनल और लोकल लेवल पे एजुकेशन को अचीव करें. अगर बात करें पॉलिसी की, जो 1986 की पॉलिसी है उसमें एक्चुअली वो पॉलिसी रिजल्ट था उन रिव्यूज़ का जो अडॉप्ट किए गए थे बजट 1985 सेशन में. उस टाइम पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. फिर उसी
जो रिव्यूज़ और मॉडिफिकेशंस जो उन्होंने डिस्कस किए थे उसमें कुछ रिकमेंडेशंस आचार्य राममूर्ति ने 1990 में दी थी। फिर केब एक कमेटी सेटअप हुई थी जुलाई 1991 में। केब की फुल फॉर्म है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एन जनार्दन रेड्डी। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस को कंसिडर किया और कुछ मॉडिफिकेशंस जो राममूर्ति कमेटी ने दिए थे उसको भी कंसिडर करके उन्होंने एक रिपोर्ट 1992 जनवरी में सबमिट करी थी, जिस रिपोर्ट का नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इस पॉलिसी का मेन एम ये था कि वो नेशनल प्रोग्रेस को प्रमोट करे, कॉमन सिटीजनशिप लोगों के अंदर पैदा करे और कल्चर को भी प्रमोट करे ताकि जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है वो स्ट्रेंथन हो। अब हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ द एनपीई 1986 कि 1986 जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। पहली रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी कि इनइक्वालिटीज़ जो हमारा भेदभाव है, वितकरा है, उसको हम रिमूव करें, उसको ख़त्म करें। जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ इनइक्वालिटीज़ थी, ठीक है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस पुट ऑन किया था और स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए गए थे फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जैसे कि विमेंस के लिए, एससीज एसटीज़ के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए। सेकंड अपना रिकमेंडेशन था अर्ली चाइल्डहुड केयर। किसी भी चाइल्ड की जो अर्ली स्टेजेस में हम कैसे केयर कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किए थे जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। और रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन इस पॉलिसी ने 3 इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स दी थी कि एलिमेंट्री जो हमारी बिगनिंग एजुकेशन होती हैं उसके लिए 3 कमिटमेंट्स दी थी कि जो स्टार्टिंग एजुकेशन है जो प्राइमरी लेवल की है उसमें यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट हो, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 हो, a much needed improvement in the quality of education that allows for children to achieve a certain level of learning. Then third recommendation was given non-formal education, NFE. NFE actually it is a system of centers and facilities which were broadened, जिसको और ज़्यादा इंक्रीज किया गया था। इट विल बी ब्रॉट अप टू द लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के लेवल तक इसको लेके आना था। फैसिलिटीज़ विद स्पेशली ट्रेन टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रेन टीचर्स फ्रॉम द कम्युनिटी, सो दैट चिल्ड्रन पासिंग आउट ऑफ NFE, इसलिए इसको ब्रॉडन करना था क्योंकि जो NFE सेंटर से फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर से जो बच्चे पास आउट होंगे वो पास आउट होने के बाद दे कैन एंटर टू द फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन। Fourth recommendation was given problem of wastage and dropouts. Actually, start in the early times, in the early stages, that is after the period of independence, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे इनरोलमेंट रेशियो भी ज़्यादा था और ड्रॉप आउट रेशियो भी ज़्यादा था। बच्चे स्कूल में इनरोल तो हो जाते थे लेकिन वो पढ़ते नहीं थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो ये था कि रिसोर्स वेस्टेज हो रही थी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज हो रही थी। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए रिकमेंड किया था कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस चीज़ के ऊपर दी जाएगी कि हम जो ड्रॉप आउट्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे और रिटेंशन इंश्योर कैसे करेंगे स्कूल लेवल पे कि बच्चे रिटेन रह के पढ़े वहाँ पर। फिफ्थ रिकमेंडेशन वाज गिवन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, कि जो एजुकेशन है वो टीचर सेंटर नहीं होगी, मीन्स टीचर अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएगा, वो चिल्ड्रन के हिसाब से पढ़ाएगा, चाइल्ड की मेंटल लेवल के हिसाब से वो पढ़ाएगा। इट विल टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड की क्या इंडिविजुअल नीड्स है, उसको कैसे समझ में आएगा कंसेप्ट, उसको पढ़ाना कैसे है, वो हर एक चीज़ को यहाँ पर टेक केयर की जाएगी। कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे फिजिकल पनिशमेंट होती है, मारना, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया था टीचिंग सिस्टम से। और इसी के अंदर जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसमें इस ऑपरेशन के अंदर ये चीज़ को इंश्योर करना था कि एक टीचर एक क्लास में होगा, देयर विल बी 1 टीचर पर क्लास, और उस टीचर को जितनी भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टीचिंग करने के लिए, टीचिंग मटेरियल्स की ज़रूरत है, वो सब इस प्रोग्राम के अंदर उनको प्रोवाइड की जाएंगी। 6th रिकमेंडेशन वॉज क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन लाइक आफ्टर 10th एंड 12th हमारी होती है, जैसे जिसमें हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज लेते हैं, PhDs करते हैं, उसमें क्वालिटी लेके आए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी गिवन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स अधिकार देना, ठीक है, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ देना। Children who have special talent have been given the opportunities to enhance their aptitude through Navodaya Vidyalayas. 7th recommendation is efficient working of education system. जो education system हम बनाएंगे
अकॉर्डिंग टू द NPE 1986 वो एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस पॉलिसी में 4 स्टेप्स आउटलाइन किए थे, 4 स्टेप्स बताए थे कि उस चीज़ को हम कैसे, एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे अच्छे से वर्क करवा सकते हैं। उन्होंने बोला था कि गिविंग टीचर्स अ बेटर डील मींस उनको अच्छी सैलरी देना एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रिपोर्ट करना, कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो उस चीज़ की रिपोर्टिंग करे कि उसने क्या पढ़ाया, सिलेबस में कैसे पढ़ाया, कितने टेस्ट लिए, रिजल्ट क्या है बच्चों का, पर बच्चे मतलब सिंगल चाइल्ड का, सिंगल स्टूडेंट का क्या रिकॉर्ड है। इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विसेज, स्टूडेंट को जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको इम्प्रूव किया जाए। बेटर सर्विसेज फॉर इंस्ट्रक्शन अच्छे से देने के लिए, लाइक स्मार्ट क्लासेस हो गया या फिर लैबोरेटरीज को कंस्ट्रक्ट करना। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, एक स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको इवेल्युएट करने के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इन 7 रिकमेंडेशंस के अलावा कुछ और रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस भी दी गई थी, जैसे एजुकेशन को कल्चरली एप्लीकेबल हो, देयर इज़ नीड फॉर लो प्राइस्ड बुक्स, हमको बुक्स महंगी नहीं चाहिए, लो प्राइस की चाहिए, सो दैट एवरी सोसाइटी, एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी कैन अफोर्ड दोज बुक्स। और इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हो, प्लस हमें एडिशनल लाइब्रेरीज की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू डेवलप द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन। Education cannot be given in only single language like Hindi or English. Local languages should also be given priority. Fifth, this policy is also focusing on greater participation of educated youth, कि जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें यहाँ पर इस पॉलिसी में, और जो इवेल्यूएशन सिस्टम है हम उसको रिवाइज करें, उसको और इम्प्रूव करें। फिर टीचर ट्रेनिंग पे और कंटिन्यूअल टीचर एजुकेशन के ऊपर इम्पॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि अगर टीचर ट्रेंड होगा, टीचर अच्छा पढ़ाएगा, तभी बच्चे आगे अच्छे पढ़ सकते हैं। इट आउटलाइंस दैट इफ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स एंड दैट इनएडुकेट और नॉन इन्वेस्टमेंट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग एजुकेशन। इस पॉलिसी ने इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया कि जो एजुकेशन है वो केवल गवर्नमेंट की नहीं, कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हमारे पास कम पैसा होता है या फिर जो हम कम इन्वेस्टमेंट करें एजुकेशन फील्ड में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और चीज़ रिकमेंड की कि GDP का 6% शुड बी यूज्ड फॉर एजुकेशन, मीन्स GDP का 6% खर्चा करना पड़ेगा इन 8th 5-year प्लान टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन द इकोनॉमी।